Hello everyone. So in this video I'm going to take one very interesting question which was asked in JEE Advanced 2016. Okay. तो ये question basically combination of integration and limit है. So how to write integration as limit of sum. तो ये concept आपने integration के time किया होगा. First principle definition of integration you can say. So I'll just advise you to solve this question. एक बार इसको try करो. Very interesting question. आपको solve करने में मज़ा आएगा. ठीक है, and then check are you able to solve this question or not. Okay, and then follow this video. मैं इसको पूरा discussion करने वाला हूँ इस solution का. Okay, so the question is let fx is equal to limit n tends to infinity n raised to n x plus n by 2 into x plus n by n upon n factorial x square plus n square by 4 so on x square plus n square by n raised to x by n for every value of x greater than 0, then which of the following is true. ठीक है, तो आइडिया यही है कि आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, टू गेट एफ एक्स. अब हाउ विल यू, दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक. ठीक है, तो बिफोर मूविंग टू दिस आई जस्ट रिमाइंड यू द कॉन्सेप्ट पार्ट. ये आपने इंटीग्रेशन में किया होगा. इफ यू डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट प्लीज गो थ्रू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इफ यू हैव लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हम अपने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में लिखा होगा. दिस इज some function of r by n where r is varying from let's say 1 to n. So this is, see, n tends to infinity, 1 by n is a small element, that is dx, small value, that is dx. This is r by n ko if I replace with x, this is fx, and now you can see if I say r by n, this is equal to x. When r is equal to 1, this is 1 by n, and n tends to infinity, this will become 0. And when r is equal to n, this is n by n, that is equal to 1, so this is equal to 1. Okay, so this is the basic definition of integration, and this is how, let's say you have, this is 1 by n, r is equal to 0 to n minus 1. So even if you have this type of expression, this is 0 to 1 f of x dx. Okay, so ये basic concept आपको पता होना चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो आइडिया ये है, देखो, वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ सीरीज लिमिट, यू ट्राई टू क्रिएट 1 by n बिकॉज 1 by n अप्रोचेज टू स्मॉल वैल्यू, तो उसको हमने कर दिया dx. एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस, जो फंक्शन गिवन है उसको एक r by n वेर r इज वेरिंग फ्रॉम सम वैल्यू टू सम वैल्यू, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में. बस यही कॉन्सेप्ट को यूज करके यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस. देखो ध्यान से, this is the expression which is given to you for all x greater than 0, right? Now try to find the pattern. So can we say, देखो, what is n raised to n divided by n factorial? Can we say this is n into n so on divided by 1 into 2 into 3 times n, right? So this is n by 1, n by 2, n by 3, n by n. So this expression can be written as limit n tends to infinity. See, this is, ये देखो n बाई n फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज प्रोडक्ट ऑफ n बाई r, ये साइन प्रोडक्ट का, r इज इक्वल टू 1 टू n, राइट? दिस इज n बाई 1 इंटू n बाई 2 इंटू n बाई 3 सो ऑन. तो ये n बाई n फैक्टोरियल कवर कर लिया हम. उसके बाद दिस इज x प्लस n बाई r, यू कैन सी r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, सो दिस इज x प्लस n बाई 1 इंटू x प्लस n बाई 2 x प्लस n बाई, तो ये भी कवर हो गया. डिवाइड बाय, अब इस टर्म को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, दिस इज r स्क्वायर प्लस n बाई r, सॉरी x स्क्वायर, नॉट r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस n बाई r होल स्क्वायर. So now you can see, let me correct it, pi, right? So this is x square, you can see, plus n by 1 square plus n by 2 square plus n by n square, और ये पावर x by n. तो ये आपके पास fx है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया. ठीक है, नाउ आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. आपके पास अगर प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी इंटू सी है, इसको अगर आपको सम में लेके आना है तो आप क्या करोगे? लॉग ले लोगे. तो लॉग ए बी सी क्या बन जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी. तो इन प्रोडक्ट की टर्म्स को अगर आपको सम में लेके आना है
तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं, ठीक है। सो इफ आई टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, दिस इज लॉग एफ एक्स ऑन द बेस ई वी आर टेकिंग, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स बाय एन, ये एक्स बाय एन तो पावर आ गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बाय एन, और आपको देखो एक्स बाय वन बाय एन भी क्रिएट करना था बिकॉज वन बाय एन अप्रोचेस टू डी एक्स, या इसको हम डी एक्स रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और अब ये देखना, दिस विल बिकम लॉग द फर्स्ट टर्म एन बाई आर, द सेकेंड टर्म, मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, इसको हम बाद में एक साथ लिख देंगे, एन बाई आर डिवाइड बाय, दिस विल बिकम प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। आप ध्यान से सुनना इसमें, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है जब ये लॉग के साथ में अटैच होगा तो कैन वी से दिस टर्म विल बिकम, दिस इज log fx, this is equal to लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बाय n। इसको ध्यान से देखो, ये जब आपके साथ log के साथ में होगा, log n बाई आर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो दिस इज n बाई वन इंटू एन बाई टू इंटू एन बाई थ्री, तो वो क्या बन जाएगा, सम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज सिग्मा log n बाई आर, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 to n प्लस, नाउ ये जो टर्म है, ये जो टर्म होगा, ये क्या हो जाएगा, log x बाई आर समेशन में चला जाएगा, x प्लस एन बाई आर समेशन में चला जाएगा। सो दिस इज सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n x प्लस एन बाई आर लॉग के साथ में, तो ये log x प्लस एन बाई आर, और जो लास्ट टर्म है जो डिनोमिनेटर में है, तो दिस इज माइनस में, दिस विल बिकम log सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n log x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट यू चेक दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज यहाँ पे सब प्रोडक्ट में थे, तो जैसे आपने log लिया तो ये सब एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसकी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, ठीक है। सो नाउ दिस इज, यू कैन से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बाय n, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस इज लिमिट r इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पे यू कैन सी, इफ आई जस्ट एक मिनट, यहाँ पे सही लिखा है, हाँ ठीक है। तो नाउ इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस, यू कैन सी दिस इज log n बाई आर इंटू एक्स प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट, एंड माइनस, तो ये डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी डिवाइडेड एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज आई थिंक क्लियर टू यू। तो दिस इज log a प्लस बी माइनस सी, तो ये log ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने, तो और ये डिवाइड कर दिया। तो इसको भी आप सारा सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बाय n, दिस इज r इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ से यू कैन सी एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दिस इज log, दिस विल बिकम r बाई एन x प्लस 1 एंड दिस इज r बाई n, that is r square by n square x square plus 1। so now I hope this is clear। हमने क्या किया, n square by r square कॉमन ले लिया, क्योंकि हमको फंक्शन ऑफ r by n बनाना था, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखो n square by r square कॉमन लिया, राइट। सो दिस इज and this is r square by n square। so now you can easily understand this part। so now you see, can we say this converts to limit log fx, this is equal to limit n tends to infinity। now this 1 by n converts to, this is x, this is integral log is r by n को we have replaced with x, 1 by n को this is replaced with dx। so this will become log, अच्छा x मत लो यहाँ पे, ये आप कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने x यूज़ किया है, ठीक है। सो दिस इज dz, ठीक है। सो दिस इज zx प्लस 1 डिवाइड बाय z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 dx। सो दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव नाउ, ओके।
आई होप दिस इज क्लियर। एक बार समझ लो, यहाँ पे आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को जेड स्क्वायर और ये डी जेड, दिस इज डी जेड। वाई? बिकॉज वन बाय एन को हमने डी जेड रिप्लेस किया, ठीक है। तो और लिमिट क्या होंगी? व्हेन आर इज इक्वल टू वन, दिस इज वन बाय एन और एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये जेड का वैल्यू क्या हो गया? 0। और जब आर का वैल्यू एन होगा तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन बाय एन इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। सो व्हाट वी हैव गॉट इज log fx is equal to integral, you can see this is limit n tends to infinity, sorry limit n tends to infinity के कारण तो ये इंटीग्रल बन ही गया है, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, ओके। सो नाउ दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 x log, now this is zx, zx plus 1 upon z square x square plus 1 dz। ये एक्सप्रेशन है आपके पास। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो अब आप ध्यान से देखना, zx here, let's say if I take zx is equal to some variable t, so now if I differentiate dz, right, we want to create dz, this is x dz is equal to dt, right? So this is, you can see log fx is equal to integral, अब लिमिट्स पर ध्यान देना, if I put z is equal to 0, what is the t value? T is equal to 0. If I put z is equal to 1, t is equal to x, तो ये बन जाएगा x. Now what is x dz? This is equal to dt, so this expression will become log t plus 1 upon t square plus 1 dt. So now we have got this expression. और अब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यही इसका मैनिपुलेशन था। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो फिर अब ऑप्शंस में चेक करना डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ तक पहुँचना ही इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो नाउ हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? तो अब आप ध्यान से देखो, इफ आई डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, दिस इज 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू log, now you can apply Newton's formula, just replace t की प्लेस पर, this is x, this is x plus 1 upon x square plus 1, and derivative of x is 1, and if I put derivative of 0 is 0. So we have got that f dash x by fx, this is equal to log x plus 1 upon x square plus 1, okay। अब आप देखो ध्यान से, अब मैं ऑप्शंस पे चलते हैं। So let's टेक अप ऑल द ऑप्शंस नाउ। अब देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको एफ ऑफ 1/2 एफ ऑफ 1 कंपेयर करना है, एफ ऑफ 2/3 और एफ ऑफ 1/3 कंपेयर करना है। पहले ही हम चेक कर लेते हैं, एफ डैश 2 और एफ डैश 3 बाई एफ ऑफ 3 आपको चेक करना है, ठीक है। तो नाउ यू सी, लेट मी चेंज द कलर, तो ओके, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, फर्स्ट थिंग यू कैन क्लियरली सी, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1, अगर आप x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 पे देखो ये वैल्यू 0 है। वाई दिस इज 0? बिकॉज दिस विल बिकम log 2/2, दैट इज log 1, और log 1 पे वैल्यू क्या हो गया? 0, करेक्ट। तो कैन वी से f डैश 1 इज इक्वल टू 0। अब f डैश 1 0 है, आप ध्यान से देखना, अगर x 0 से 1 के बीच में, if x is between 0 and 1, you can clearly see x square will be less than x, correct। और अगर x square less than x है तो x square plus 1 will be less than x plus 1। इसका मतलब क्या होगा? अगर x 0 से 1 के बीच में होगा, if x is between 0 and 1, log x plus 1 upon x square plus 1, this is, अब x square plus 1, if this is less than x plus 1, this is log of a value which is greater than 1, correct। this quantity is greater than this quantity, मतलब ये क्या है? this quantity is greater than 1, and if this is so, log greater than 1, base is e here, so this, if the number is greater than 1 and base is e, obviously this quantity is greater than 0. So can we say if x is between 0 and 1, f dash x जो होगा, you can see this is positive, now we have already proved, and fx तो positive है। why fx is positive? because you can clearly see, मैं एक बार फिर देख लेते हैं, देखो fx पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज
x is positive, so all these numbers will definitely be positive. N is a natural number, right? So now you see f dash x is greater than 0. And if you check this, if x is greater than 1, तो अगर x greater than 1 होगा तो now if x is greater than 1, can we say x square will be greater than 1 x, और x square plus 1 will be greater than x plus 1. तो अब जो क्वांटिटी log of x plus 1 upon x square plus 1 होगा, this is, you can say this quantity is this quantity under this condition. देखो x स्क्वायर प्लस 1 बड़ा हो गया, मतलब ये log लेस देन 1 आ जाएगा, log लेस देन 1 वैल्यू आ गया, और इस केस में अब क्या होगा, दिस वैल्यू विल बिकम नेगेटिव. तो ये क्या हो गया, f डैश x अब जो होगा विल बी नेगेटिव. तो यहाँ नाउ यू कैन सी ये f डैश x जो है ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, f(x) तो पॉजिटिव है. करेक्ट. सो व्हाट डज दिस मीन, f(x) फंक्शन is a increasing function in 0 to 1 and f(x) function is decreasing in 1 to infinity. 1 to infinity. यहाँ से हमने इसको क्लियर कर लिया. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में जो आपका क्वेश्चन था f of 1/2 और f of 1. तो नाउ यू सी f of 1/2 and f of 1. इफ आई वांट f of 1/2 और f of 1, अब देखो 1/2 कॉमा 1 किस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में होगा. अब अगर इस फंक्शन में, इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली f of 1 विल बी ग्रेटर देन f of 1/2, बिकॉज अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो लार्जर वैल्यू पे वी विल हैव द लार्जर वैल्यू ऑफ y. करेक्ट. सो दिस इज ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग. ठीक है. ऑप्शन बी में आपने देखा है, ऑप्शन बी में क्या चेक करना था, f of 1/3 एंड 2/3. ठीक है. तो 1/3 और 2/3 के लिए क्या करोगे, फिर से देखो f of 1/3 and f of 2/3. Now you can clearly see f of 1/3, f of 2/3 किस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में. इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो विच वैल्यू विल बी ग्रेटर, f of 2/3 विल बी ग्रेटर देन f of 1/3. ओके. तो ये ऑप्शन बी भी हमने करस्पॉन्डिंग चेक कर लिया. तो नाउ यू कैन से दिस ऑप्शन इज करेक्ट बट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट. f of 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3. ओके. नाउ f dash 2. Now f dash 2 we have already seen कि देखो यहाँ पे इसमें देख लो f dash 2. अब x greater than 1 के लिए f dash x less than 0 है, तो ऑब्वियसली f dash 2 जो होगा that will also be negative. तो ये वाला पार्ट भी ट्रू हो गया, f dash 2 जो है that is less than 0. This is also correct. अब how will you check the last part, f dash 3 by f of 3, f dash 2 by f of 2. तो वो यहाँ से आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो. देखो हमने ये प्रूव किया था f dash x by f x is this. तो now if I say what is f dash x by f x, this is log of x plus 1 divided by x square plus 1. करेक्ट. ये है हमारे पास. so now you see if I find f dash 2 divided by f of 2 minus f dash 3 divided by f of 3, अगर हमने ये चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो आप डायरेक्टली बता सकते हो. So what is f dash 2 by f of 2? इसमें x is equal to 2 पुट कर दो. So this will become log this, if I put x is equal to 2 तो ये क्या हो गया, 3 by 5. x is equal to 2 पुट किया माइनस log, जब हम 3 पुट करेंगे this will become 4 and this is 9 plus 1 that is 10. तो यहाँ से you can clearly see what is this. This is log 3 by 5 into 10 by 4. Correct. So this is log, you can check, this is 2 this is 2 and this is 2. So this is 3 by 2. अब log 3 by 2 और ये बेस क्या है, e. If base and number are on the base and this number are on the same side of unity, then this value is greater than 0. So what does this imply? This implies f dash 2 by f of 2 is greater than f dash 3 by f of 3. So this is the relation between these two. तो यहाँ से now you can say is this correct? No, this is not correct because हमारा जो ऑप्शन था आंसर है that is f dash 2 by f of 2 is greater than f dash 3 by 3. So what is the answer? Option B is the answer, option C is the answer. So I hope you have understood this.
कि कैसे हमने इसको मैनिपुलेट किया, कैसे हमने इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, एंड देन वी गॉट द फाइनल आंसर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूजिंग application of derivative, using how to convert limit to integration and so on. So I hope you have understood this question. Okay, so that's it for now. Thank you.